Good morning, everyone. So when Benny told me that I have to speak, I never expected such a large crowd. I thought कुछ लोग hall में बैठे होंगे and I have to speak to them. But when I see this large crowd, it's only because Sudeep was supposed to inaugurate this session. So perhaps all of you have come for the fear of Director TMC, though there is no attendance here. So first, let me, on a serious note, thank all of you. आज कहीं भी जब हम जाते हैं विश्व में या पार्लियामेंट्री कमेटीज में या किसी भी हिस्से में और गर्व के साथ कहते हैं कि वी आर द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड और वी से दैट वी आर द फाइनेस्ट एजुकेशन सेंटर इन द वर्ल्ड और द बेस्ट रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. ट्रस्ट मी. जो घर में जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर माँ बाप वो घर में उनको नाश्ता ना दें, उनको स्कूल पढ़ाने के लिए ना भेजें, और वो जो एक काम होता है जो कि एक चोर जैसा होता है, वो एक रूटीन काम होता है, जब तक वो काम नहीं होता है तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं. तो आज अगर डॉक्टर्स आर टेकिंग क्रेडिट फॉर एनी ग्रोथ इन सर्विस, एजुकेशन, रिसर्च, आउटरीच प्रोग्राम, it is only because of the good administration that you do. For you it is a routine work, is something that goes on and on and on, and perhaps you are not recognized. But having worked in administration, having worked in project, having worked in many of those critical areas, I have realized that the strength of Tata Memorial Center, what differentiates from any other hospital in the country, is a excellent administrative staff that we have. And for that, I can tell you, we do our own recruitment. You go to All India Institute of Medical Sciences, PGIMR, all the big institutions that you talk about, HR is a very big critical issue. We do our own recruitment and we know how to recruit it. We do all our purchase order. And I'm so pleased to say that our purchase department does thousands of crores of purchase every year put together in all TMC, and never ever has there been any problem. Similarly, our stores, our accounts, they are dealing with such a mammoth volume, and yet they are able to do it with utmost sincerity, with utmost time-bound manner, and this allows us the confidence that we can operate the patient, we can run our services, we can run our labs and all that. So first, let me, on behalf of the medical profession, on behalf of the administration, let me pay my highest gratitude to all of you. And thank you for coming here. And certainly, next 30 minutes, I'm going to tell my views on how you can develop into good administrator. And when I say good administrator, I see my daughter in you, I see my son in you, and sometimes there is a lack of, I think, motivation and disillusionment that perhaps you are not doing a job which is well recognized. And therefore, there is always an element of self-pity and inferiority that कहाँ मैं फंस गई, कहाँ मैं काम कर रही हूँ. I can tell you one thing. You could have done many jobs in your life. You could have gone to some bank and perhaps you could have got some more money. You could have gone to a corporate and you could have got some more recognition, and maybe the जैसे कि बैंक में होता है कि everybody is a vice president और they are the managers or general managers. So अभी यहाँ पे हम आपको बोलते हैं यूडीसी, एलडीसी, कभी बोलते हैं असिस्टेंट, एओ, डबल एओ, ट्रिपल एओ. ये बड़ा कई बार अजीब सा लगता है. वाई कांट आई बी वाइस प्रेसिडेंट, वाई कांट बी जनरल मैनेजर, वाई कांट बी अ रिसोर्स मैनेजर, और वॉट एवर नेम्स देयर. सो ये सब चीजें ना, कई बार जब आप अपने को बाहर वालों से कंपेयर करते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो हिट करता होगा. लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू हैव कम, बिकॉज यहाँ पे ना पैसे के साथ आपको पुण्य मिलता है. एंड अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज नॉट द पैसा, कुछ भी आप अपने साथ लेके नहीं जाओगे. इज मैटर्स जो कार्मिक करेंसी है आपकी ना, जो पुण्य मिल रहा है मरीजों की सेवा करके, क्योंकि आप इनडायरेक्टली पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो, और वो जो एक आपको गरिमा देता है और वो जो आपको समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, दैट इज समथिंग दैट नो प्रोफेशन एंड नो अदर जॉब कैन गिव यू.
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू वर्क इन टाटा मेमोरियल सेंटर, आपकी जो कॉस्ट टू कंपनी है, आपकी मार्केट वैल्यू है, बढ़ जाती है, क्योंकि इट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर कैंसर केयर एंड एवरीबॉडी वांट्स टू कम हियर। एंड आपसे लोग सिफारिश करेंगे कि काश मेरी भी मीटिंग करवा दो, डॉक्टर से मिलवा दो, जल्दी इलाज करा दो एंड ऑल दैट। दैट इज अनदर प्रॉब्लम, बट आई मस्ट से दैट यू मस्ट डू इट। वाई यू मस्ट डू इट? बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए, अपनी समाज की सेवा के लिए, अपने आसपास के लोगों की सेवा के लिए अगर आप नहीं करते हैं, तो इस अस्पताल में काम करने का कोई फायदा ही नहीं है आपका। इसलिए अगर किसी को फोन कॉल से, अगर किसी की सिफारिश से, अगर किसी की वो सहायता करके, मीटिंग फिक्स करके, जल्दीबाजी का इलाज करा के अगर ये कर सकते हैं, तो प्लीज डू इट। So I have just put some thoughts together for 11 essential elements of a good administrator. It is just my thought. And I'm sure there are many people who will either agree, disagree, or they have better way of expressing the same thing. But since the stage is given to me and I'm supposed to speak for another 20, 25 minutes, these are my views and we will have some interaction to deal with. And why I have developed these views? Because I joined this institution in 1996 as a resident. And from residency, I have come to this level. And while doing this journey, I have gained certain knowledge while working in projects as well as the hospital work. And I feel that this could be one of those things that I can share with you. And this is what people say, that the best and the smartest people are those who learn from the others' experiences. So these are my experience. These are my thoughts. And let us go one by one. The most important thing for any administration, please understand, today you may be AO, you may be assistant, you may be UDC, but you can become CEO. Nobody is stopping you. And please understand, there are watchful eyes on you every day when you work, from your seniors and from people who are beneficiaries of your work, say doctors, director, deputy director, CAO. They are all watching you. And people look at accountability in you. And accountability का मतलब सिर्फ ईमानदारी और शराफत ही नहीं होती है। accountability का मतलब है कि आपको अगर कोई जॉब असाइन किया जाता है, तो आप उसको कंप्लीट करते हो कि नहीं। एंड मेनी अ टाइम्स इट मे सीम दैट मेरे पास एक फाइल आई है, मैं उसको आराम से उस पर करूंगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपको एक काम दे दिया गया, तो आप मानो कि अगर उस परचेज में, उस बिलिंग को पेमेंट करने में, उसको डिसीजन लेने में, रिक्रूटमेंट में अगर आप डिले करते हैं, तो शायद एक मरीज की मौत होगी। कारण क्या है कि कोई भी डिले इन अ हॉस्पिटल रिजल्ट्स इन इंफीरियर केयर एंड परहैप्स समबडी इज गोइंग टू बी हार्म्ड। अगर एक इंस्ट्रूमेंट सही समय पे नहीं खरीदा गया, अगर किसी वेंडर का पेमेंट नहीं हुआ, किसी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, ये सब कहीं ना कहीं मरीज के केयर पे, किसी की डेथ पे, किसी के ट्रीटमेंट के डिले में मैटर करेगा। सो योर अकाउंटेबिलिटी इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ आवर पेशेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी जो अकाउंटेबिलिटी का जो सबसे बड़ा अ, मतलब मैं उदाहरण दूंगा, कि अकाउंटेबिलिटी जब जूनियर लेवल से सीनियर लेवल की तरफ जाती है, तो उसमें फर्स्ट यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर वर्क, बट एज यू बिकम सीनियर, आपके नीचे दो तीन लोग हैं, यू हैव टू बिकम अकाउंटेबल टू योर डिपार्टमेंट। सो ये जो प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन कई बार आपको लगता होगा कि अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, जब मैं यूडीसी से एओ बन जाऊंगा, एओ से डबल एओ या जेओ बन जाऊंगा। जिंदगी बेहतर नहीं होती है, जिंदगी और कॉम्प्लिकेट होती है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज जैसे आदमी पहले बैचलर होता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े माँ बाप होते हैं, फिर नौकरी का प्रेशर होता है। तो जैसे पर्सनल लाइफ में ना जिंदगी कभी बेहतर नहीं होती है, जिंदगी और कॉम्प्लिकेट होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है ना, वो जिंदगी आपकी और कॉम्प्लिकेट होगी, बट दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बट द लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Administration is all about doing things right, and leadership about doing right things.
कई बार ना हम लोग अटक जाते हैं कि नहीं नहीं, जीएफआर में ये लिखा हुआ है, स्वामी में ये लिखा हुआ है, गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है। हम भूल जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने वो कर दिया है ना तो ठीक है ना, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो। लेकिन अगर आपको लीडरशिप दिखानी है, आपको अकाउंटेबिलिटी दिखानी है, आपको लोगों की नज़र में जो है आगे बढ़ना है, यू हैव टू फाइंड solutions to those problems and do the right things. Don't do the things in the right way. The second is the brilliance. मैंने ये बहुत देखा है, खास करके यंग लोगों में। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आप पढ़ाई करना बंद कर देते हो। आप ना तो कोई रूल बुक पढ़ते हो, ना तो आप स्वामीज पढ़ते हो, ना तो जीएफआर पढ़ते हो। आप क्या करते हो कि जो किसी ने आपको सिखाया है ना, और जो आपने सुना है किसी सीनियर को बोलते हुए या किसी के साथ काम किया हुआ, आप उसी पे अटक जाते हो। आप कभी भी कोई नई चीज और बेहतर चीज या रेफरेंस टू सम गाइडलाइंस वो कभी नहीं करते हो। Trust me, what I have realized in every meeting, when somebody comes to me and he says, I just try to analyze, ये हवाबाजी कर रहा है या सुनी सुनाई बात कर रहा है या एक्चुअली ये किसी जीएफआर से बात कर रहा है। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अबाउट जी हुजूरी करना कि डॉक्टर पंकज ने कोई काम बोल दिया, डॉक्टर सुदीप ने बोल दिया, वो मुझे करना ही है। आई वॉन्ट आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू टेल अस दैट यू शुड नॉट डू इट। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी चापलूसी करने के लिए आप गलत काम मत करो। हमारे को आप समझाओ कि कौन सी चीज करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए यू शुड हैव अ लॉजिक, यू शुड हैव अ सॉलिड रूल। लेकिन किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, वो एक एटीट्यूड जब रहता है तो दो प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए मैं कहूंगा कि आप ना, वो एक थ्री इडियट्स में एक डायलॉग है, ज्ञान हर तरफ बंट रहा है। तो उस तरीके से लीडरशिप का, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान हर तरफ है। आप ना अपने दिमाग को ट्यून करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आज भी ना हवा में बहुत सारे एफएम चैनल्स घूम रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने रेडियो को फाइन ट्यून करता हूं पर्टिकुलर चैनल के लिए तो ही वो आता है। तो उसी तरीके से आपको अपने दिमाग को फाइन ट्यून करना पड़ेगा, तभी जो चारों तरफ ये ज्ञान बट रहा है वो आप उसको एसिमुलेट कर पाएंगे। Third thing is communication, and I think this is very, very critical. And I tell to doctors also. अल्टीमेटली आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी अकाउंटेबल हो, लेकिन अगर आपका वार्तालाप अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वी ऑल वर्क टूवर्ड्स टू थिंग्स इन लाइफ। वन इज द फेयरवेल एंड द अदर इज फ्यूनरल। What matters in life that how many people come in your farewell? What matters in life how many people come in funeral? और अगर आप वाणी के आप कड़वे हैं और आप अच्छी बात नहीं करते हैं, तो आप जब तक पावर में है ना, आप लोग सबकी, लोग आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। जिस दिन आपका फेयरवेल होगा ना, गुड रिडंस, अच्छा है वो हेडेक चला गया। तो आप ऐसे क्यों करते हो? और कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लर्न और गो टू सम प्लेस टू लर्न। एंड उसका सिंपल उदाहरण देता हूं कि जैसे ही हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, कितना भी कड़क माँ बाप हो, सॉफ्टन हो जाता है। क्यों सॉफ्टन हो जाता है? कि बिकॉज वी ट्रीट आवर चिल्ड्रन एज आवर फ्रेंड्स एंड वी डू, हमारी इज्जत अपने हाथ में है। बहस करेंगे, डांट डपट करेंगे, वो उल्टा हमें जवाब देगा। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में है, सामने वाले का रिएक्शन देखो। अगर आपने उसको डांट डपट दिया, वो आपकी बात मान गया, तो इसका मतलब यह है, और चुप रह के चला गया, इसका मतलब यू मे हैव कॉन्कर्ड अ डिस्कशन बट लॉस्ट अ फ्रेंड एंड लॉस्ट द रिस्पेक्ट। नाउ वेदर यू वांट टू कॉन्कर अ कॉन्वर्सेशन और यू वांट टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप, इज चॉइस इज योर्स। तो झगड़ा करने से, डांट डपट करने से कोई फायदा नहीं होता। लेट मी कोट थ्री इडियट्स वंस अगेन। उसमें वो है ना कि हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम प्रेशर कुकर नहीं चला रहे हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट प्रेशर कुकर आपने बना के रखा हुआ है, जिसमें आपने ढक्कन लगाया हुआ है, सीटी लगाई हुई है और नीचे से आग आप लगा के रखे हो, प्रेशर कुकर मत चलाओ। क्योंकि प्रेशर कुकर में कभी भी यू कांट गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर एम्प्लॉयज। तो कम्युनिकेशन में मैंने यही सोचा है कि कई बार मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी
When you are happy, don't promise anything. When you are angry, don't make any comments. तो अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय में बहुत एंग्री हो, आप चुप हो जाओ, 2 दिन के बाद उसका रिप्लाई दो, कोई जरूरत नहीं है कि आप तुरंत रिप्लाई दो. एंड इफ यू गेट एन ईमेल ऑल्सो विच इज वेरी हर्टिंग, यू डोंट हैव टू रिप्लाई इमीडिएटली. ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है कि ईमेल आया और आपने कम्युनिक उसका रिप्लाई दे दिया. Don't reply when you are very upset. And if you do any reply after 48 hours, you will realize that your response is far better than what you would have done. Fourth is the delegation. I think here I would strongly urge, even in administration, senior administration, medical administration, बहुत बार ना हम हर चीज खुद करना चाहते हैं. We always think that we are the best and we should do everything ourselves. सी क्या होता है कि अगर आप खुद सब करना चाहोगे तो यू कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. बट इफ यू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट योर जूनियर्स ऑल्सो डू important task, you become the leader. Now, whether you want to remain as an administrator or you want to become a leader, choice is yours. The reason is, once again, when you allow youngsters, junior people, to do complex tasks, they respect you. They become your followers and they take you in high regards. And as I told you, funeral and farewell, these are the most important things. And delegation, if you create followers, they'll be there in your farewell and they'll be there in your funeral. So here I would suggest that कभी भी ना juniors को काम देने से डरो मत. हम लोग जब सर्जरी करते हैं ना, हमारे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को भी सर्जरी देते हैं, सेकंड ईयर को भी देते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने देखा है कि वी समटाइम्स यू डोंट ट्रस्ट द जूनियर्स एंड दैट अलाउज यू टू गेट अ बॉटलनेक. वो काम जितनी तेजी से होना चाहिए वो काम उतनी तेजी से होता नहीं है. क्या हो गया? हाँ. फिफ्थ इज इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड इसके लिए ना पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा. एक बच्चा था. वो बच्चा जो है ना, आजकल के बच्चों में हो गया है, मेरे बच्चों को भी मैं देखता हूँ कि बहुत स्ट्रेस है डैडी. बहुत. हमारे जमाने में तो बच्चे जब स्ट्रेस बोलते थे तो एक थप्पड़ मिल जाता था, सब स्ट्रेस चला जाता था. अभी तो ये है कि एंग्जाइटी हो गई है, थोड़ा स्ट्रेस हो गया है. एंड मैं अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स पे भी देख रहा हूँ. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देम, इट इज बिकॉज ऑफ अस. हमने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है कि वो जो बुलिंग था, वो जो प्रॉब्लम्स थे, वो उन्होंने झेले ही नहीं. कुछ भी मांगा उसका तुरंत घर में आ जाता है. तो ये जो बच्ची थी वो अपने पिताजी से बड़ी परेशान थी कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ. तो उसके पिताजी उसको किचन में लेके गए. वो बोली, अरे मैं इतनी परेशान हूँ और मुझे किचन में क्यों लेके जा रहे हो? तो किचन में जो है उसने गैस के 3 बर्नर थे, उसमें पानी बॉयल करने के लिए डाला और उसको बोला, ले बेटा ये डाल. बोला क्या है? ये आलू है. वो आलू एक उबलते पानी में डलवाया उससे. फिर उसको बोला ये क्या है? तो बोला अंडा है, इसको भी उबलते पानी में डाल दो. उसने भी डाल दिया. फिर उसके हाथ में उसने एक कॉफी बीन दिया. बोला ये कॉफी बीन है बेटा, इसको भी उबलते पानी में डाल दो. वो भी डाल दिया उसने. और पानी बॉयल हो रहा था और दोनों माँ और ये बेटी और बाप जो है कुर्सी पे बैठ गए. बेटी बोली मेरा बाप सठिया गया है, मैं इतने स्ट्रेस में हूँ, इतने टेंशन में हूँ और ये मुझे उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ अंडा दिखा रहा है, ये क्या हो गया इसको? 20 मिनट के बाद बोला अभी गैस बंद कर दो. गैस बंद हो गया. फिर उसने बोला अभी जो है ना उसमें से एग निकालो, आलू निकालो और देखो क्या हो रहा है. आलू निकाला तो आलू जो सख्त था वो बॉयल होने के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया था. एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम पल्पी हो गया. जो अंडा था, जो पहले अंदर सॉफ्ट था, वो एकदम सख्त हो गया. और जो कॉफी बीन था उसने पूरे पानी का कलर बदल दिया और एक फ्रेग्रेंट एंड फ्लेवर्ड वाटर बन गया. उसने अपनी बेटी को बोला कि ये जो बॉयल हो रहा था ये 3 जो है कष्ट के कारण है, बहुत सारे. वेदर यू वांट टू बी अ पोटैटो, वेदर यू वांट टू बी एन एग, और वेदर यू वांट टू बी अ कॉफी बीन, जो कि स्ट्रेस में पूरे के पूरे वातावरण को बदल देता है और घुल मिल जाता है और फिर भी एग्जिस्ट करता है. द चॉइस इज योर्स. तो जब भी स्ट्रेस आता है ना, वो स्ट्रेस को आपको, जिंदगी को अपने ऐसा नहीं कर देना है कि मैं एकदम कमजोर हूं, इंफीरियर हूं. एक्चुअली स्ट्रेस इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. एंड आई विल गिव यू अनदर स्टोरी. अभी मौका मिला है तो स्टोरी सुनाता जाऊंगा मैं जब तक टाइम खत्म नहीं होगा. तो एक गरीब किसान था. वो जो है अपने गधे के साथ जो है शहर जा रहा था.
और रास्ते में उसका गधा जो है वो एक गड्ढे में गिर गया। तो वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, उसने बोला कि इस गड्ढे को में गधे को निकालता हूं मैं। तो उसने रस्सी डाला, डंडा डाला, बहुत सारी चीजें उसने कोशिश की, लेकिन वो गधा नहीं निकला और बड़ी चिलचिलाती धूप थी, वो थोड़ा बेहोश जैसा हो गया। तो उसका बड़ा प्रिय घोड़ा गधा था, तो उसने बोला कि ठीक है, अभी इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, तो इसको इसी में बरी कर देता हूँ, एक अच्छी मौत मर जाएगा, चलो निकल जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने जो है उसको बेरी करने के लिए उसमें मिट्टी डालता गया। और जैसे जैसे वो मिट्टी डालता गया, गधा उसके ऊपर चढ़ता चला गया। लास्ट जब उसने पेड़ डाला कि चलो मिट्टी और डाल देते हैं, फाइनल वो गधा एकदम ऊपर तक आ गया था। तो द स्टोरी इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट द एडवर्सिटी इनटू एडवांटेजेस, and that is what converts a successful person from an unsuccessful person. Adversity सबकी लाइफ में है, मुश्किल सबकी लाइफ में है, there is no one who doesn't have any problem. Only problem is that you think that your problem is the bigger than the other problem. And I can tell you, जब भी मैं अस्पताल में घुसता हूँ और जब मुझे मरीज दिखते हैं व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे, मुझे लगता है कि मैं तो दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। और वो जो मरीज है और वो जो उसका परिवार है जो एडवांस कैंसर से है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो अपने मृत्यु को अपने सामने देख रहा है, दैट इज द रियल पेन, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। Actually, we should be celebrating every day for being alive, because there is nothing important than being alive and being having your family alive and your dear and near ones around you. So please understand that by being alive, by being healthy, by having a job, by having a family, by having a house, by having a food, you are the luckiest person on the earth. And for you, I think sky is the limit that you can achieve, and there can't be a better place than Tata Memorial Center to achieve those dreams, because this is the place where accounts department can work to the fullest, the HR can work to the fullest, the any department can work to the fullest. Now, sixth is the fearless, and here I would thoda मैं I will cross the boundary. बहुत सारे लोग ना, आप ऑडिटर से डरते हो, बहुत सारे लोग। ट्रस्ट मी, जब मैं वाराणसी में 2018 में, डॉक्टर बड़वे ने मुझे बोला कि पंकज यू हैव टू वर्क इन द वाराणसी प्रोजेक्ट, 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट था और मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, जीरो, वो बीओक्यू शब्द भी मुझे नहीं मालूम था। वो भी जब डॉक्टर बड़वे ने बोला तो फटाफट जाके किया, गूगल किया कि ये बीओक्यू होता क्या है, मैंने हाँ तो बोल दिया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, व्हाट आई रियलाइज, हर जगह जो है ना, वो जैसे कि बचपन में हम सोते थे तो मम्मी बोलती थी बेटा सो जाओ, नहीं तो वो कुछ वो होते हैं ना डेंजरस लोग जो कि अ, नहीं, गब्बर के अलावा हमारे यहाँ चुड़ैल बोलते थे, या बोलते थे कि वो कोई भिखारी है जो कि बच्चों को जो है वो किडनैप करके लेके जाता है, तो उस तरीके से था, वो तो शोले का डायलॉग है। तो हमारे यहाँ था कि हम बच्चों को डरा डरा के सुलाते थे कि सो जाओ नहीं तो फिर वो आ जाएगा। लकड़ सूंघा बोलते थे हम लोग। एक जमाने में वो एक लकड़ सूंघा इज वाज अ वर्ड वेयर, वो एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती थी, उसको सूंघा के बच्चों को बेहोश करके किडनैप करके लेके जाते थे। तो ऑडिटर का जब मैंने सुना पहली बार कि ऑडिटर, तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ रावण टाइप के लोग होंगे, जो कि बड़े खतरनाक राक्षस टाइप के लोग होंगे, और वो आके जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वालों को जो है तकलीफ देते रहते हैं। जैसे वो वो थी ना पंचवटी, जिसमें कि राक्षस आके जो है हवन सामग्री को सब लेके चले जाते थे। तो सब लोग बोलते थे अकाउंट सर ऐसा कर, ऑडिट वाला आ जाएगा, परचेज वाले बोलते थे, स्टोर्स वाले बोलते थे, एचआर वाले बोलते थे। तो मैं सोचा ये ऑडिटर तो बड़ा खतरनाक आदमी होगा। ट्रस्ट मी, जब मैं ऑडिटर को देखा, वो भी अच्छे इंसान थे यार, बड़े सीधे इंसान थे। हमने इतनी सारी गड़बड़ियां की थी और हमने उनको जब समझाया कि हमारे इंटेंशन सही थे, प्रोसेसेस हमने फॉलो नहीं किए थे, और वो प्रोसेसेस में हमारे डॉक्यूमेंटेशन की कभी कमी थी, या कभी इसका अप्रूवल नहीं, कभी उसका अप्रूवल नहीं, लेकिन उस चीज से किसी की जिंदगी बची, किसी की भलाई हुई, ऑडिटर ने कभी कुछ नहीं किया आज तक। तो ये जो आप लोग एक डर लेके बैठे हो ना, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड डू इलीगल थिंग, रॉन्ग थिंग, आई एम सेइंग समटाइम्स यू शुड ओवरकम द फियर, for the simple reason that every delay in file movement is causing death of the people, because everything you do impacts the outcome of the patient. एक और चीज है,
मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स हैं उनको देखा है, वो हमारे पास आते हैं, सर मेरे पास टेबल नहीं है, सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, सर मेरे पास एक हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि हम अपनी जिंदगी को और अपने, आई एम टेलिंग बिकॉज मेनी ऑफ यू आर वेरी यंग, यू आर टाइड टू अ माइलस्टोन, यू आर नॉट टाइड टू अ गोल। आपका माइलस्टोन जो है ना छोटे छोटे रखोगे, वो अचीव करने के बाद भी आप खुश नहीं होगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि मुझे सीईओ बनना है, मुझे जो है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बनना है। अगर इस गोल के साथ आप बढ़ेंगे ना तो ये छोटी मोटी चीजों को आप ओवरकम कर सकेंगे। नहीं तो मैंने कई बार देखा है, एक अभी जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था एक्ट्रैक्ट में, कई लोग मुझे पहचानते ही नहीं थे। तो मैं चाय वाय लेने जब जाता था तो काफी लोग ना, एक मॉर्गन स्टैनले का एक वो है जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले दोपहर में वो चाय वाय खरीद के पीते हैं, तो वो लोग जो है ना जो डिस्कशन कर रहे थे, मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि बहुत छोटी चीजों में वो उलझे हुए थे, बहुत सारी छोटी चीजों में, जबकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो कर सकते थे। उस दिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है, ये जो मीटिंग हुई है और ये जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है, सो दैट यू कैन सी द लार्जर गोल, यू कैन सी द लार्जर विजन। एंड वंस यू आर हैविंग द गोल, हर दिन सुबह जब आप सो के उठोगे ना, आपको वो नया दिन लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव अ वेरी सिंपल लिटमस टेस्ट वेदर यू आर हैप्पी और अनहैप्पी इन लाइफ। सिंपल लिटमस टेस्ट है, जब आपकी आंख सुबह खुलती है तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड? First thought that comes to your mind. If the first thought is that yes, today is the new day, I'm looking forward to this new day, और दूसरे होते हैं कि ओ गॉड फिर से वापस जाना पड़ेगा अस्पताल, फिर से जो है वो खड़ूस को देखना पड़ेगा, अभी खड़ूस कौन है मुझे नहीं मालूम। तो अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो लेट गो थिंग्स विच मेक्स यू अनहैप्पी, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव ओनली वन लाइफ, एंड इफ यू आर अनहैप्पी यू विल नेवर ग्रो। सो मेरा यही कहना है, try to identify what makes you unhappy, try to resolve those issues, so that you are able to be happy when you wake up and you open your eyes. And उसके लिए सबसे बढ़िया ये है, you set a very high goal, सेट अ वेरी हाई गोल कि मुझे ये करना है। देन छोटी मोटी चीजों से जो है ना आप कभी घबराओगे नहीं। एंड इट्स अ वेरी, एक पुरानी कहावत है कि जब तूफान आता है ना तो नाव हिलती है बट शिप नहीं हिलता है। तो वेदर यू वांट टू बी अ बोट और यू वांट टू बी अ शिप, द चॉइस इज योर्स। Eighth is humility. Humility, I would say that it is a strength that will not only take you higher level in Tata Memorial Center, but in personal life also. जब तूफान आता है ना तो जो सूखा पेड़ होता है वो टूट जाता है, और जो हरे पेड़ होते हैं जिनमें जान होती है वो कभी टूटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मुड़ जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द रीजन ह्यूमिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का है कि आप हर बार सही नहीं हो सकते हो। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने सही डिसीजन लिया है, और कई बार हम अपने गलत डिसीजन को सही ठहराने के लिए कई बार जिद पे अड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल। और उससे क्या होगा? तूफान जब आता है ना, ऑडिटर जब आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, वो सूखा पेड़ गिर जाता है, एंड उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर बोलते हैं। है कि नहीं? अरे, तो अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन अगर उसी वर्टिकल में आगे ग्रो करना चाहते हो तो आपको कर लो। और एक और चीज है वो जो मैंने बोला अभी, कभी भी जूनियर्स की गलती को आप जूनियर्स पे मत डालो, जूनियर्स की गलती को आप अपना करके मानो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों की गलतियां अपने सर पे ले ली, आप बन जाओगे नीलकंठ शिवा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये मान के चलने चाहिए कि सामने वाले को भी मालूम है, सीनियर्स को भी मालूम है कि गलती जूनियर ने की है, लेकिन सीनियर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ये नहीं है कि आपने गलती किया और आप ही को पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन आपके जूनियर्स की नजर में और सीनियर्स की नजर में आप एक महापुरुष बन जाते हो कि इसने मुझे बचाने की कोशिश की, भले वो बचाया कि नहीं बचाया, लेकिन वो जो प्रयास होता है वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार जो है ना लीडरशिप में, इंस्पिरेशन में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने
क्या नहीं कर सकते थे कर दिया। क्या वो चीज है जो कि कभी आप सोच भी नहीं सकते थे, वो हो गया। एंड ट्रस्ट मी, आज भी मुझे जो ज्यादा खुशी होती है वो टाटा अस्पताल में काम करके नहीं होती है, एक्ट्रेक में काम करके नहीं होती है। मुजफ्फरपुर, वाराणसी, एंड आई वुड अर्ज ऑल ऑफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे जो लोगों ने सर्विस दी है, एक भी परमानेंट मैन पावर नहीं था, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल थे, कोई सिस्टम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन वो किया। वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि टीएमसी के लोगों ने, डॉक्टर बड़वे ने, डॉक्टर सुदीप ने, बाकी लोगों ने जो इंस्पायर किया, मुजफ्फरपुर जैसे जगह पे जहां पे कि अच्छा पानी भी नहीं मिलता है, वहां बढ़िया सर्जरी हो रही है, बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज वी आर एबल टू गिव दैट कल्चर एंड इंस्पिरेशन where people are delivering what they never imagined could do that. And I would thank entire administration because all of you contributed to commissioning of the hospital in Varanasi and everywhere, not only Varanasi. दसवां है जोवियल। एंड लेट मी टेल यू, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है प्रेशर कुकर वाला ना, आपको डिपार्टमेंट में प्रेशर कुकर जैसा चला रहे हो आप, उसको मैं ये चाहूंगा कि यू शुड बी वेरी जोवियल। आप उसी बात को अच्छे से भी कह सकते हैं, प्यार से भी कह सकते हैं, और आप लोगों से काम भी करा सकते हैं। हर समय डांट डपट के काम कराने से, आपने सर्कस देखा है ना, सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है जो कि हंटर से काम कराता है, वो भी हो सकता है एक तरीका काम करने का। और दूसरा होता है कि कभी कभी हंटर और कभी कभी प्यार। तो ये जो मिक्स एंड मैच है, उससे क्या होता है कि आपके जो लोग होते हैं इंस्पायर होते हैं। मैं बहुत सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ओआईसी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा हूं, इतना टेरर होता है ओआईसी का, इतना टेरर होता है कि मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो तो बेचारे जॉब छोड़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो अटके हुए हैं यहाँ पे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो काम भी नहीं कर पाते हैं, विच इज बैड फॉर द ओआईसी। सो ये जो एक अपने डिपार्टमेंट में आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, कुछ ऐसे ब्रेक्स लें जिससे कि आप लोगों की जो है बॉन्डिंग हो। और लास्ट, ये मेरा फेवरेट स्लाइड है। सी, एक इंसान था, वो पहुंचा परली गेट, शायद परली गेट बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारा तो चित्रगुप्त के द्वार पे बोलते हैं। वो वहां पहुंचा और उसको कहा गया कि नरक में चले जाओ। वो बड़ा दुखी हो गया, बोला कि मैं नरक में क्यों जाऊं, मैं तो एक अच्छा पिता था, एक अच्छा पुत्र था, एक अच्छा पति था, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, बड़ी सादगी की जिंदगी जी। उसने बोला वो तो आपका कर्तव्य था, तो आपको करना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन मैंने बेटा आपके लिए ना बहुत सारे टेस्ट लिए, आपके बहुत सारे मैंने परीक्षाएं ली और हर बार आप फेल हो गए। मैं एक फरियादी, एक गवर्नमेंट अस्पताल में काम करता था, आपके लिए मैंने कह दिया ये। और मैं एक मरीज के रूप में गया कि मेरा बिल अटका हुआ है, पास करा दो। आपने मुझे भगा दिया। मैंने आपको दूसरा मौका दिया कि आप सड़क पे जा रहे थे, टाटा अस्पताल के आगे जो फुटपाथ है, वहां मैं करा रहा था, बेचारा था, मैंने आपसे हेल्प मांगा कि कुछ मेरी हेल्प कर दो, आपने मेरा तिरस्कार किया। मैं एक सड़क पर जो है भूखा था, प्यासा था, मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने मेरा नहीं किया। तो मैंने तो बहुत सारे तुमको चांसेस दिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन तुमने जो है कुछ नहीं किया। कारण क्या है कि कर्तव्य और कर्म में अंतर होता है। बाई बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर, यू आर पेड फॉर दिस। Being a good doctor, I'm not doing any karma, I'm doing my kriya because I'm paid for it. What is the definition of the karma? What is the definition of punya? जब आप सेल्फलेस, जिसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती है, जिसके लिए आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, जिसके लिए आपको कोई नहीं कहता है कि ये आपका काम था, और वो अगर आपने किया ना, तो ही आप जो है इंसान बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रिया और कर्म में। क्रिया कैसे होती है? सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं। ये तो क्रिया है लाइवलीहुड के लिए, ये तो सारे पशु करते हैं। पशु भी सुबह से शाम तक ये काम करता है।
इंसान में और पशु में यही अंतर है कि हम सेल्फलेसली भी दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, एंड देयर कांट बी ए बेटर प्लेस देन टाटा मेमोरियल सेंटर, जहां पे कि पैसे के साथ आपको पुण्य भी मिलेगा, कर्तव्य के साथ आपको कर्म भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।